Good evening, everyone, and welcome back again. Zaba, and he starts off with the dot delivery. In case if you have joined just now, then this is Mandram Champions Trophy, Season 5. This is Day 4. And game between Ubadanda, Jaymancheshwar, and Tuvi cricketers Karapur. Ubadanda winning the toss and deciding to bowl first. 6 overs game. First 2 overs, mandatory power play overs. Down the ground, fielder under it. And he takes it on the boundary rope and sends Sachin back in the dugout without anything onto his name. In fact, it's Siddesh who is heading back. That's a big wicket in the context of the game as the big man has gone without scoring. He's gone for a golden duck. It's none for 2. Sachin Govekar is the new man and lost 2 wickets in 2 deliveries. Will be on a hat-trick. Abha Nawar. Can he be the 4th man to get a hat-trick? Short pitch delivery, pulled away. And 1 bounce over the ropes for 4. So starts off with a boundary as Sachin Govekar. Score moves to 4. 4 for 2. First over in progress. 6 overs game this between Ubadanda and Karapur. Team winning will meet down the ground, in the air, and will clear everyone. And that's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Score moves to 10 with that maximum.
Change in bowling, it will be Nick Brito. Sachit Sawant will be on strike for the first time. Full toss delivery, carved away on the bounce to the field. A chance of run out or not collecting it cleanly. The bowler would have been gone for all money. Sachit Sawant. Excellent bit of work by the fielder. Tanmay at point. I've seen some terrific batting from him in the previous game. Scored 25 over just 10 deliveries. That's a shot and a half. That's gone all the way for 6. Deep in his crease, and he sends it deep in the crowd. The off stump, just inside that wide line, where you can't give enough room for the batsman to free his arms. Again, excellent bowling, another dot delivery. Talking about all those 3 teams reaching the semi-finals. On day 1, it was full toss delivery. Down the ground, down to deep mid-wicket, just for a single. Single 20 over after completion of 2. It's 20. 20 for 2 after 2. 2 cricketers, Karapur. DJ.
Flat batted in the air, field coming in. And will take it easily. And this time it's Sachit who is heading back to the pavilion. 21 for 3. DJ. Latif. Latif, the new man in, lobs it in the air and it falls between the two. Bowler and the keeper were trying to get there, but neither successful in catching that one. And now the drop chance. Big hit in the air, chance, field coming in, and he takes it easily. Another wicket falls, falling in deep trouble at the moment. Two cricketers, Karapur, 21 for 4. And will be change in bowling. It will be Pratik Ditsolkar.
Want to smash that run out the park. Missed. Will just be a single. Viraj, the new man in on strike. In the air, field coming in, and he just puts it down. Came in from the boundary rope. Excellent bit of effort from him, but just couldn't quite grab it in his hands. Viraj gets a let off. .23 on the board. Fourth over in progress. Full toss delivery. Down the ground. Field coming in from the boundary rope. Takes it easily. Half side done packing of the two-way cricketers Karapur. It's 23 for 5. Progress already have lost half their side. Two-way cricketers Karapur. Team winning will meet Bandeshwar Bandha Margaon in quarter-final 4. That's a no ball, and Viraj will definitely look to come back. No, just settling for 1. Straight away directed towards the head of the batsman. Might have just slipped out of his hands, and the umpire has given him a warning. First warning has been given to the bowler. Free hit time. Can this one go out of the park? Down the ground, won't be given out unless and until it's run out. Looking for the second one. Chance. Safely home, I guess, but the umpire will have a look just to be sure. The umpire is having a look. Third umpire has been referred for. £4 44,444. That's the ultimate prize the winner will get, and a big trophy as well from Sada Sports. Excellent trophies, excellent sports equipments you're getting from Sada Sports. All over Goa, he has been providing with the trophies, also in Maharashtra. Seems to be fine, so safely done. Not out. Is the umpire giving the decision? Yeah. Not out the decision, and score moves to 30. So after 4 overs, it's 30.
30 for 5, and change in bowling. It will be Abba. Swing missed, dot delivery. Looking for the reverse over that backed point, and point fielder missed completely. Just bowling that line by the left armer Abba, just outside the off stump, taking it away from the right hander. Again looking for the reverse, and again missed. Dot delivery. Just 10 deliveries left. Only 30 on the board. 30 for 5 to be cricketers Karapur. Nicely played. In the deep mid-wicket region, coming back for the second one. No, send back. Just a single. Score moves to 31. 3 deliveries, 1 run. Reverse sweep missed. 4 deliveries, just a single run by Abad Nawar. 4 deliveries, just a single. Excellent bowling. This needs to finish up well in these last 2 deliveries. Short pitch delivery and gets stumped. Could be 1 bounce. Yeah, 1 bounce over the ropes for 4. DJ. Straight away a fielder has been placed on the boundary rope for that particular stroke. Nawar getting some protection on that deep back to the point boundary. Again, the fielder will watch it sail over for 6. Last 6 deliveries. Can the batsman from Karapur provide some magic? Down the ground, will be looking to get back on strike. Viraj. Yeah. Will get back quite comfortably. Maybe a throw at the batting end would have been better. So Viraj has scored 2 of the first delivery. Score moves to 43. An extra fielder on the field. Full toss delivery missed. Dot delivery. So he's retired out.
Thank you, DJ. Chandrakant is the new man in. Final 4 deliveries. Swing, missed, dot delivery. Just the 2 runs so far. I wasn't sure why did Prahlad was at the other end. He would have stayed, accumulated the strike and faced the 5 deliveries. Had scored 10 in the last 2 deliveries, the previous over. Nicely bowled, will be only 1. Are they coming back for the second one? Yes, they are. Good return, but not good enough. 1 short run. So 1 short run has been given, so just a single. So score moves on to 44. Final delivery coming up. Last delivery. Can they get to 50? In fact, 2 more deliveries left. Swing, missed, dot delivery. So final delivery coming up. Swing, missed. And that will be it. So after completion of 6 overs, Tuvi cricketers Karapur were invited to bat first by Ubadanda Jayamansishwar. They have managed 44 for the loss of 6 wickets in their 6 overs. Top scored by Sachin with 21. Supported well in the end by Prahlad with 15 runs. Talking about the bowling, Abanawar picked up those 2 crucial wickets at the start. He finished with 21 for 2. Nick Brito with 10 runs, no wickets to him. Suresh Manjrekar gave away just 1 run and picked up 2 wickets. Pratik Dicholkar with 9 and 1 wicket. And in the end, Rakesh also bowled excellently, just giving 3 runs and picking up that wicket. So in the end, it will be 45 required. 45 required for Ubadanda Jayamansishwar to win this game and move into quarterfinals 4. Will it be the Goa team that stays in the hunt for that 4th spot? Or will it be a Maharashtra team that goes through and meets another Maharashtra team in quarterfinal 4? To have you that run chase and the details from the next innings, we'll have Ashok Naik sir in the commentary box.
हो सकता है मैदान पर एक बहुत ही शानदार, क्योंकि गेंदबाजी है, ताकत है गेंदबाजी। तुबी क्रिकेटर्स कारापुर क्रिकेट टीम की बहुत अच्छी गेंदबाजी है, फील्डिंग अच्छी है। और सामने देखना होगा जय मानसेश्वर उबादांडा बेंगुरुले क्रिकेट टीम इस 45 के टारगेट के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करती है। तो पहला ओवर जारी, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। रुद्रेश गुप्त गेंदबाजी करने के लिए और सामने बल्लेबाज है तन्मय पडवल और उन्हीं के साथ अभी साळगावकर। 45 रनों का टारगेट, 6 ओवर का मैच है और जो जीतेगा वो खेलेगा आने वाला अगला मैच। जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा वो होगा बांदेश्वर एससी मड़गांव क्रिकेट टीम के साथ। पहली गेंद ऑफ टम्प पर थोड़ी सी नीचे रही, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में रुद्रेश की। 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल, एक मिड विकेट बाउंड्री पर तो दूसरा है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। अच्छी गेंद, गेंद को इस बार खेला, बहुत ही बेहतरीन शॉट। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे होते हुए 2 रन के साथ जय मानसेश्वर उबादांडा बेंगुरुले क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया मैदान पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट स्वीप किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। तन्मय पडवल के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन स्वीप इस बार देखने को मिला, 4 रन के लिए। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चली गई इस बार, हाना हाना कर रहे थे, रन के लिए निकले, नॉट सही करें पर थ्रो, लेकिन क्रीज में सुरक्षित। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में और बस स्ट्राइक पर अभी सामना करेंगे अभी साळगावकर रुद्रेश की गेंदबाजी का, जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अल्टी पल्टी की कोशिश, एक अच्छी गेंद रुद्रेश की, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। तुबी क्रिकेटर्स कारापुर 44 रन 45 का टारगेट रखा है जय मानसेश्वर उबादांडा बेंगुरुले क्रिकेट टीम के सामने। 6 ओवर का मैच है और स्कोर हो चुका है टोटल 7 रन। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दूर है फील्डर, लेकिन धोखा बिल्कुल नहीं लिया बल्लेबाजों ने। मालूम है रनआउट का विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सामने टीम के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान से। कर गेंदबाजी करते हुए राउंड विकेट, इस बार ये गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 रन पर। बिल्कुल अंपायर का इशारा थोड़ा सा हो चुका है, हिट विकेट के लिए कॉल आ चुका है। देखना होगा, अंपायर जांच कर रहे हैं मैदान पर, तीसरे अंपायर जो tenniscricket.in के साथ जुड़ चुके हैं। देखना होगा क्या हुआ वहां पर मैदान पर, हवा के झोंके के साथ बेल्स गिर चुकी है या बल्लेबाज की बैट लग चुकी है, ये बिल्कुल
आउट, हिट विकेट। हिट विकेट, वाइड बॉल का इशारा जरूर था, लेकिन बल्ला लग चुका है जो कि स्टंपों पे। तो पहला विकेट खोती हुई मैदान पर जय मानसेश्वर उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम। पेडनेकर और सामने हर्षद मातोंडकर गेंदबाजी के लिए आगे निकलकर हाफ वॉली पर ड्राइव किया आपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, फॉलो थ्रू में बहुत सुंदर फील्डिंग। टारगेट 45 का है, लेकिन संघर्ष होगा मैदान पर क्योंकि दो बेहतरीन टीम है। सामने गेंदबाजी बहुत अच्छी है, सामने बल्लेबाजी वो भी बहुत अच्छे है। ओ मिस टाइम शॉट, जल्दबाजी कर बैठे, पॉइंट पर एक आसान सा मौका, शायद दोनों के बीच में गेंद गिर चुकी है। एक आसान सा मौका था, आने वाला समय बताएगा ये मौके का कितना फायदा मिलता है राधाकृष्ण पेडनेकर को और जय मानसेश्वर उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम को। लेकिन इस मैदान का पिछले 3 दिन से इतिहास है, जो मौका मिला है वो महंगा साबित हुआ है। यहां से लेकर एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी राधाकृष्ण पेडनेकर को, लेकिन एक आसान सा मौका गवा दिया मैदान पर फील्डरों ने। एक सफलता जरूर थी हर्षद मातोंडकर को, और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर तन्मय पडवल। हल्का सा अपील, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है पावर प्ले में। हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओ एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश, फिर से मौका खो दिया मेरे ख्याल से तुवी क्रिकेटर्स कारापुर क्रिकेट टीम ने, और एक रन जुड़ गया तन्मय के खाते में। एक रन मिला जय मानसेश्वर उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला, 11 पर पहुंचा 1 विकेट पर। ओ फिर से खराब क्रिकेट, फिर से खराब गलत क्रिकेट, और इस बार कोई मौका नहीं दिया। पावर प्ले में बड़े शॉट के लिए निकले बिल्कुल बल्लेबाज राधाकृष्ण पेडनेकर। दूसरा धक्का लगा जय मानसेश्वर उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट टीम को। डीजे लेकर बहुत अच्छी गेंदबाजी हर्षद मातोंडकर, और छोटे गेंद बैकफुट पर निकले, पुल किया इस बार, लेकिन बिल्कुल धोखा नहीं लिया।
ऐसे समय पर बिल्कुल ये रनआउट का विकेट महंगा बन सकता है और ये सोच बिल्कुल सही थे मेरे ख्याल से। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, एक बहुत ही अच्छा ओवर, सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में, 2 विकेट चटकाए हर्षद मातोंडकर ने। बहुत ही शानदार स्पेल रहा ये पहला ओवर का। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच को जीतने के लिए चाहिए 34 रन, 24 चंडू 34 धावा। गेंदबाजी में परिवर्तन, मैदान पर सचिन सावंत आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज है तन्मय पडवळ, नॉन स्ट्राइकर इन पर तेजस चुवलेकर। फील्डिंग में तब्दीली हो चुके हैं मैदान पर। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और 2 ओवर के बाद जो फील्डिंग थी वो फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर हो चुका है। देखना होगा तीसरा ओवर जारी हो रहा है और सचिन सावंत आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आगे निकलकर खेला, थोड़ा सा अपेश हवा में गेंद, मिडऑफ के फील्डर को बीट किया गेंद ने। पहला रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी और इसी बीच में थोड़ी गेंद जो कि मिडऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से निकली और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 13 रनों पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मैच का। 32 रन चाहिए, आने वाले 23 गेंदों का खेल बाकी। 23 डिलीवरीज। मैच आसान नहीं है बिल्कुल, दोनों टीमों के लिए संघर्ष होगा, मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए इस मैदान पर, इस मैच को साथ। फुल टॉस गेंद, इस बार बहुत अच्छा शॉट ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 14 रनों पर। तीसरा ओवर जारी है मैच का। गेंदबाजी कर रहे सचिन सावंत, तेजस चुवलेकर जो स्ट्राइक पर अभी अभी नए बल्लेबाज आ चुके हैं, अब तक खाता नहीं खोला है और उन्हीं का साथ दे रहे हैं तन्मय पडवळ जो लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर ये जो कि लेफ्ट हैंडर तन्मय पडवळ और सामने तेजस चुवलेकर। और स्टंप को शफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बिल्कुल ये फेवरेट शॉट है तेजस का, लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। गेंद निकली विकेट के पर के हाथों में, एक डॉट गेंद के साथ। 44-45 का टारगेट तुवी क्रिकेटर्स कारापुर क्रिकेट टीम का और वहीं से लेकर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान पर। तो ये गेंद देखना होगा, ये गेंद देखना होगा। नो बॉल का इशारा, जो पिच है बिल्कुल पिच क्यूरेटर भीम सिंह जिन्होंने बनाया, उससे भी जो कि गेंद बाहर के थे और इसलिए अंपायर का नो बॉल का इशारा। और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद, अगली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है। तेजस चुवलेकर क्या फ्री हिट की गेंद पर बिल्कुल एक बड़े शॉट के साथ मैदान पर या डॉट गेंद निकालने में सफल होते हैं सचिन सावंत। फ्री हिट की गेंद, लेकिन बिल्कुल फायदा नहीं मिला। फ्री हिट की गेंद थी, बिल्कुल फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को। डॉट गेंद निकालने में सफल रहे तो सचिन सावंत को बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ, पिछला ओवर सिर्फ 3 रन 2 विकेट चटकाए हर्षद मातोंडकर ने और इस ओवर में भी अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं दिखाई दे रहा बल्लेबाजी में। छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी लेग कटर गेंद थी, बल्लेबाज के बिल्कुल शरीर पे आकर टकराती हुई गेंद और लगातार 4 गेंदें अब तक बिल्कुल खाता खोलने में असफल तेजस चुवलेकर जो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं आने वाली अगली गेंद का।
45 का टारगेट है, 6 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर जारी है मैदान पर। और लगातार वही कोशिश हो रही है मैदान पर, और बल्लेबाज को बिल्कुल फॉलो कर रहे गेंदबाज। 5 लगातार डॉट गेंदे, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अच्छा ओवर रहा सचित सावंत का, ये जो 4 रन दिए, सफलता नहीं मिली लेकिन बहुत किफायती रहे। 3 ओवर का खेल समाप्त, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 30 रन। 18 चेंडू 30 धावा। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए हर्षद बातोड़कर पहले ओवर में 3 रन 2 विकेट चटकाए। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तन्मय पडवल उनका साथ दे रहे हैं। तेजस जुवलेकर अब तक खाता नहीं खोला है। सामने 10 पर व्यक्तिगत एक चौका लगाते हुए तन्मय पडवल, और 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर बाकी। 18 गेंदों में 30 रन मैच को जीतने के लिए जय मानसेश्वर उबादांडा वेंगुर्ले क्रिकेट टीम को। आड़े बल्ले से खेला, थोड़ा सा ऑन दी राइज, दूर है फील्डर। पहला रन पूरा किया। हाना हाना कर रहे थे, रनआउट का खतरा। देरी हो चुकी थी मैदान पर, पहला तालमेल में गड़बड़ थी बिल्कुल। एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ 16 रनों पर टोटल आगे बढ़ा 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर हाथों में है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टारगेट बढ़ रहा है, रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर। कम गेंदे ज्यादा रन, यह स्थिति हो रही है मैदान पर। और देखना होगा तेजस जुवलेकर जो संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज जरूर है, लेकिन आज थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है। सामने हर्षद बातोड़कर अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया बॉलर के पास से। पहला रन लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन दूसरे रन की बिल्कुल तमाम शंका को समाप्त कर दिया। लॉन्ग अप बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला स्कोर में। 17 पर टोटल आगे बढ़ा 2 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र चौका लगा जो पहले ओवर में तन्मय पडवल के बल्ले से, लेकिन वही से लेकर तुबी क्रिकेटर्स कारापुर क्रिकेट टीम बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं सामने जय मानसेश्वर उबादांडा वेंगुर्ले क्रिकेट टीम को। फिर से अच्छी गेंद। छोटी गेंद बैकफुट पर पुल किया इस बार, लेकिन फिर से रनआउट का शायद 2 का हो सकता था। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। ओवर थ्रो रहा, और इस ओवर थ्रो के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन कीमती होगा इस मैच में, क्योंकि जिस तरह से मैदान पर मुकाबला हो रहा है, लग रहा है आखिरी ओवर पर यह मैच जरूर जाएगा। एक बहुमूल्य रन और स्कोर पहुंचा 19 पर। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट।
ओ मिस टाइम शॉट, क्या खुद निकले अपने फॉलो थ्रू में। ओहो हो, क्या छूटा और जब तक गेंद पर हावी होते गेंद को कलेक्ट करते। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। एक बहुत ही अच्छी कोशिश थी, आसान कैच नहीं था ये, कोशिश बढ़िया रही थी हर्षद बातोड़ करके अपने फॉलो थ्रू में 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत अच्छी कोशिश थी, अगर पकड़ते तो टूर्नामेंट का बेस्ट कैच लगभग था ये। और सामने तन्मय पडवल एक बार फिर से सामना कर रहे हैं आने वाली अगली गेंद का। कोशिश जरूर कर रहे हैं मैदान पर वो कि एक बड़े शॉट के लिए। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। और एक सिंगल बढ़ गया, खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। अब चाहिए 23 रन और गेंदे बची आहे सिर्फ 12 चेंडू 23 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 12 गेंदों में के दर्दी वेंगुर्ला से इस मैदान पर मैच का आनंद लेते हुए बबलू कुबल आपका स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा है इस मैच के साथ। 12 गेंदों में 23 रन, मुकाबला बिल्कुल हो रहा है मैदान पर। देखना होगा मैच बिल्कुल दोनों टीमों के लिए अभी भी 50-50 का मुकाबला है। एक अच्छा ओवर कम रन देकर और 1-2 विकेट निकाले तो मैच बन जाएगा तुबी क्रिकेटर्स कारापुर क्रिकेट टीम को। और आने वाले ओवर में अगर 2 बड़े शॉट लगे मैच में वापसी होगी जय मानसेश्वर उबादंडा वेंगुर्ले क्रिकेट टीम को। तेजस जुवलेकर थोड़ा सा रुककर 7 गेंदों पर अब तक 2 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन। लतीफ, ओ ये गेंद अपील जरूर था लेकिन बिल्कुल सही इशारा अंपायर का। बहुत चौकरनी निगाह योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर, बहुत जो कि चौकरनी, मैं दाद दूंगा उनको बिल्कुल, जो कि जिस तरह से जो कि शुरू में अभी साड़गांवकर जो बल्ला लगा था बिल्कुल स्टंप के ऊपर और बेल्स गिरे थे, तो अंपायर को भी जो कि बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत अच्छी अंपायरिंग। तो यहीं पर एक डॉट गेंद के साथ लतीफ अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे टारगेट बढ़ रहा है, रन रेट बढ़ रहा है मैदान पर। सामने तन्मय पडवल सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। और टॉप एज लगा, गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है और एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल तेजस जुवलेकर आ चुके स्ट्राइक पर। स्कोर हो चुका है 23 टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ मैदान पर 5वें ओवर का। 22 रन चाहिए, आने वाले 10 गेंदों का खेल बाकी। थोड़ा सा 19-20 का मुकाबला मैदान पर दिखाई देता हुआ जय मानसेश्वर उबादंडा वेंगुर्ले क्रिकेट टीम के लिए। पीछे बल्लेबाजी है शेष, लेकिन देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। हापली पर लेकर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। देखना होगा दूसरे रन के लिए क्या कोशिश होगी। 1 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग मैदान पर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के पास। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। लतीफ गेंदबाजी कर रहे, राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ओ बोल्ड हुए गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके। तीसरा धक्का लगा जो कि जय मानसेश्वर उबादंडा वेंगुर्ले क्रिकेट टीम को। डीजे
20 धावा। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। पावशतक धावफलकावर 3 गडी बाद। 8 चेंडू उरलेत, 8 चेंडूत 20 धावा। नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो राकेश सारंग। ओव्हरपिच चेंडू, पंच वळतायत, दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय, आणखी एका धावेची भर पडते धावसंख्येत। प्रत्येक धाव खूप महत्वाची असेल या मॅच मध्ये ती जय मानसुशर उभा दांडा वेंगुर्ले क्रिकेट संघाला। अजूनही उरलेत 8 चेंडू आणि 8 चेंडूत करायच्या आहेत विजयासाठी 19 धावा। 8 चेंडूत 19 धावा। हलके टॅप करतोय एक सिंगल साठी दोन्ही या ठिकाणी। बघा पंचांकडे दात मागितली जाते, काय घडलंय मैदानात बघा। पंचांचा इशारा झालाय तिसऱ्या पंचांसाठी आणि त्याच दरम्यान मात्र दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय। दुसरी धाव नक्की अडचणीत टाकणारी, परंतु त्या अगोदर बघूया पहिल्यांदा काय घडलंय मैदानात ते। पहिल्यांदा काय घडलंय मैदानात ते बघूया। आणि पंच या ठिकाणी इशारा झालाय पंचांचा। संध्याकाळच्या सत्रात सुरू असलेला सामना आणि जो संघ जिंकेल त्यानंतरचा सामना असेल तो बांदेश्वर SC मळगाव या दोन संघादरम्यान। चार गड्यांच्या मोबदल्यात महत्वाचा षटक, महत्वाचा चेंडू। गोलंदाज लतीफ आपल्या बॉलिंग मार्कवर क्षेत्रक्षणात मैदानात बदल करतोय। डावकुरा फलंदाज समोर सज्ज झालाय अनिकेत। पुढे सरसावतोय, मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, एक निर्धाव चेंडू, अतिशय सुंदर षटक हाताळलाय मैदानात ते गोलंदाज लतीफनं। धावफलक 26, 4 गडी बाद। खेळ समाप्त होतोय, फक्त 4 धावा देतोय या षटकात, 1 गडी बाद करतोय गोलंदाज लतीफ। खेळ समाप्त झालाय तो 5व्या षटकाचा। 6 चेंडू 19 धावा असं समीकरण या सामन्यात येऊन ठेपतोय। 6 चेंडूत 19 धावा, 6 गेंदों में 19 रन। समोर जय मानसुशर उभा दांडा वेंगुर्ले क्रिकेट संघासाठी। कुठेतरी मला वाटतं त्या फलंदाजीत सामना अडचणीत आलाय आणि त्या अगोदर थोडंसं अभि साळगावकरची बेजबाबदार फलंदाजी, राधाकृष्ण पेडणेकर असं क्रमवारीत बदल दिसला।
परंतु प्रत्येक टीमचं मॅनेजमेंट आणि कर्णधार यांचे काही निर्णय असतात. बघूया सामना कशा प्रकारे संपतो या दोन संघादरम्यान, कारण अजूनही सामना संपलेला नाही. 6 चेंडू 19 धावा. पुढे सरसा होतोय, सुंदर फटका, लॉंग आपला चेंडू, डीप लॉंग आपला, षटकार 6 धावासाठी. सामना परत एकदा सुरू झालाय मैदानात. पांच गेंदों में 13 रन, 5 गेंदों में 13 रन, 5 चेंडू 13 धावा. पुढे सरसावत एक सुंदर फटका, लॉंग आपला, टोलेजिंग षटकार, 5 चेंडू 13 धावा. स्विच हिटचा प्रयत्न अपील झालाय, पंचांकडे दाद मागितली, परंतु पंच मात्र या ठिकाणी बघूया, दोन्ही पंच एका ठिकाणी बहुतेक चर्चा होते मैदानात. स्विच हिटचा प्रयत्न आणि या स्विच हिटच्या फटक्यानं बऱ्याच वेळा सामन्यात संघाला अडचणीत आणलंय. कधीतरी हे फटके सामने जिंकून देतात, परंतु एकंदरीत बऱ्याच वेळा हे फटके संघाला अडचणीत आणतात. बघूया पंचांचा निर्णय काय होतोय. तो अपील झालंय झेलबादसाठी आणि पंच आपल्या जागेवर जात आहेत आणि पंचांचं बोट मात्र बरं होतंय, म्हणजे फलंदाज बाद झालाय. एक स्विच हिटचा फटका अंगलट येतोय, अगदी ठीकठाक फटका पहिल्या चेंडूवर, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर हादरा बसलाय, धावफलक मात्र थांबलाय तो बरोबर. तर गोलंदाज वापसी करतोय, कमबॅक करतोय. शेवटचं षटक, अंतरिम षटक, 4 चेंडू बाकी. आल्या आल्या फटका फसलाय, मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, एक साधा सोपा झेल टिपला जातोय, एक मिसटाईम फटका आणि फलंदाज तंबूमध्ये परततोय. 6वा गडी बाद होतोय. जय मानसवेश्वर उभा दांडा वेंगुर्ले क्रिकेट संघाचा डीजे. आबानवर मैदानात सज्ज होतोय. फक्त खेळ उरलाय तो 3 चेंडूंचा आणि या 3 चेंडूत करायच्या 13 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 3 चेंडूत 13 धावा. गोलंदाज सिद्धेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर. शॉर्ट ऑफलाईन, वाईड बॉल, ऑफस्टम्पच्या भरपूर बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते मैदानात. या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकलाय तो 33. उरलेत अजूनही 3 चेंडू. या 3 चेंडूत करायच्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी 12 धावा. पुलरलेनचा चेंडू, बघूया बघूया बघूया, या ठिकाणी फलंदाज अडचणीत दिसतोय, फलंदाज अडचणीत सापडलाय आणि आणखी गडी तंबूमध्ये परततोय, म्हणजे एकंदरीत 7वा गडी हा मैदानात बाद होतोय.
आणलाय तो तुवी क्रिकेटर्स कारापूर क्रिकेट संघानं 45 धावांचं एक माफक आव्हान. येणारा चेंडू असेल महत्वाचा या सामन्यातील. 2 चेंडू 12 धावा. स्लोवर वन पुन्हा एकदा सुरेश मांजरेकर या स्लोवर वनला फसलाय. बाद होतोय, धावबाद होतोय आणि सामना येऊन ठेवतोय तो शेवटच्या चेंडूवर. म्हणजे जी गोलंदाजांनी कामगिरी केली त्या गोलंदाजीच्या कामगिरीवर फलंदाजांनी अक्षरशः मी म्हणेन की पाणी ओतलं. अभि साळगावकरची बेजबाबदारी फलंदाजी, राधाकृष्ण पेडणेकर मला वाटतं त्या ठिकाणी विनाकारण फटका मारायच्या नादात आपलं विकेट देऊन गेला. आणि त्यानंतर तेजस जुवलेकर ज्याने अवघ्या 9 चेंडूंचा सामना केला परंतु 4 धावा. कुठेतरी त्यावेळेस सामन्यात दबाव आला येणाऱ्या फलंदाजावर आणि तिथे सामना नक्की झाला. दुसऱ्या बाजूने हर्षद मातोंडकरचं कौतुक करावं लागेल. दुसऱ्या षटकात अवघ्या 3 धावा देत 2 गडी बाद केले. सामना येऊन ठेपलाय तो. शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल टू गो आणि विजयासाठी 12 धावा. स्क्वेअर लेगला, डीप स्क्वेअर लेगला फटका फसलाय. हवेत चेंडू स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि सामना मैदानात अशा तऱ्हेने संपतोय. क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतोय तो तुवी क्रिकेटर्स कारापूर. जय मानसुशर उभा दांडा बेंगुर्ले. तुमचं आभार. सामन्यात या स्पर्धेत तुम्ही सहभागी झालात परंतु एका मोठ्या स्पर्धेत मी म्हणेन की तुम्ही कामगिरीत नक्कीच गोलंदाजाच्या कामगिरीवर तुम्ही खराब कामगिरी फलंदाजाने केलीत. सामना निसटला. दुसऱ्या बाजूने तुवी क्रिकेटर्स अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी केली, क्षेत्ररक्षण केलं आणि कमी धावसंख्येत त्यांनी हिंमत नाही हारली. सामना शेवटपर्यंत धरला. वळूया सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचकडे आणि त्यानंतर एक छोटासा ब्रेक असेल अवघ्या 5 मिनिटांचा आणि त्यानंतर क्वार्टर फायनलची आजची लढत असेल ती बांदेश्वर SC मळगाव विरुद्ध तुवी क्रिकेटर्स कारापूर.